Hello everyone, good evening. I hope you all are well. So, until we are waiting for the another participants to join the session, हमारा ये एक continued series है जिसके already we have taken 3 sessions. तो I just want to know यहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों में से कितने लोगों ने previous sessions जो हैं वो join किए हैं, because I can see the new names here. So I don't think कि आप लोगों ने previous sessions जो हैं वो join किए हैं. Okay, so I will start with the previous presentation, a quick overview on it, then we will forward to our today's session. तो previously हमने first session में introduction लिया था forex market का, a brief introduction that what is forex, what is traded in forex, how we buy and sell the currency pairs, and what are the different ways to trade forex. इन चीजों पे we have taken the brief introduction. फॉरेक्स मार्केट के बारे में वी हैव रीड व्हाट अ फॉरेक्स मार्केट इज, व्हाट इज करेंसी एक्सचेंज, आप फॉरेक्स मार्केट में कैसे एंटर कर सकते हो, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर कौन कौन सी करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं. तो बेसिकली वी हैव मोर देन 128 करेंसी पेयर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑल्सो. सो जो लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया था, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग सेशन ऑफ 30 to 40 मिनट्स, तो मैं अभी के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन में इसे कवर नहीं कर पाऊंगी, बट जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया था, we will have a fresh start again, so everybody can again join that session. So hum starting say we will do it. This was our basic training course. In the first day we have done the brief introduction to forex market. Second day we have done the basic terminologies of forex, and we have learned about the best time and the techniques to trade forex. Today we will learn about the types of forex orders and the MT4 platform basic understanding we will do. Okay, so I'll not waste much time now. I'll start with the today's presentation. Okay everyone, तो आज की presentation में हम start करेंगे types of forex order से. Okay, we'll start from types of forex order. There are two types of forex order. Basically, you guys trade on the MT4 platform, MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Okay, you place the orders either buy or either sell. सिर्फ यही दो चीजें हैं जिसके बारे में हमें सीखना है कि हमें कैसे करना है. Okay, so वो orders आप market में कैसे place कर सकते हो. There are two types of orders. I'll show you practically also. One is market order and one is pending order. What market order is? Market order is an order instantly executed against a price that your broker has provided. Like whenever you click on the order, it instantly places in the market. It will not take any time. जैसे ही आपके क्लिक पे जो ऑर्डर प्लेस हो जाता है, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं कि हमने मार्केट ऑर्डर लिया है. Either it is a buy or either it is a sell. Then we have a pending order. What pending order is? Pending order, an order to be executed at a later time at the price you specify. मतलब आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम पे कोई भी प्राइस पे एक ट्रेड को पेंडिंग छोड़ सकते हो, और वो आपकी ट्रेड किसी भी टाइम पे उस प्राइस पे जाके एग्जीक्यूट हो सकती है. इस ऑर्डर का एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है. व्हाट इज दैट? you don't have to sit 24 hours in front of your PC to do the trading, right? That is the benefit. Like you have just to do your analysis and you think if अगर मार्केट जो है इस प्राइस पे जाने वाली है इस टाइम तक, आप एक पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे उस प्राइस पे, चाहे आपको उस प्राइस से बाय लेना है या सेल लेना है. आपके पास एक एनालिसिस ऑलरेडी रेडी है कि अगर यूरो यूएसडी का प्राइस 1.2468 पे है इस टाइम पे, और आने वाले टाइम पे यूरो यूएसडी का प्राइस 1.2478 पे जाएगा, तो यहाँ से ये नीचे ही गिरेगा. 78 पे जाने के बाद ये नीचे ही गिरेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता है. तो आप उस टाइम पे 78 पे सेल स्टॉप लगा देंगे, और जैसे ही आप सेल स्टॉप लगाएंगे, जब प्राइस वहां पे पहुंचेगा आपकी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी. आई विल शो यू हाउ यू कैन डू इट. सो टाइप्स ऑफ ऑर्डर में जो हमने पढ़ा, मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर, क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? मार्केट ऑर्डर के अंदर आप बाय लगा सकते हैं और आप सेल लगा सकते हैं. पेंडिंग ऑर्डर आप 4 पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं: बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप. दैट मीन्स कि अगर आप पर्टिकुलरली किसी मार्केट के करंट प्राइस के ऊपर से भी बाय ले सकते हैं,
नीचे से भी बाय ले सकते हैं, ऊपर से भी सेल ले सकते हैं और नीचे से भी सेल ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। तो आपके पास चारों ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये चारों ट्रेड्स जो हैं, बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, आपको हेल्प करेंगी ऐसा करने में। ओके, नाउ वी विल सी हाउ। पहले हम मार्केट ऑर्डर पे आते हैं कि मार्केट ऑर्डर हम कैसे प्लेस करेंगे। इसके बाद वी विल गो टू MT4, और MT4 पे हम समझेंगे कि मार्केट ऑर्डर हमें कैसे प्लेस करना है। आई होप यहाँ पे मोस्ट ऑफ माय ऑडियंस टुडे, एज आई नो, इज बहुत ही फ्रेशर्स हैं वो, दे आर नॉट अवेयर विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अगर कोई भी बीच में कुछ दो चार लोग ऐसे हैं जिनको इन चीजों की अवेयरनेस है, तो दैट इज वेल एंड गुड। सो एग्जीक्यूशन ऑफ मार्केट ऑर्डर, राइट? Market order is an order to buy or sell at the best available price. How? For example, the bid price of Euro USD is currently at 1.2140 and ask price is at 1.2142. So if you wanted to buy Euro USD at the market, then it would be sold to you at the price of 1.2142. मतलब अगर आपको Euro USD पे बाय का ऑर्डर लेना है, बाय का ऑर्डर लेने के लिए जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे और बाय पे क्लिक करेंगे, तो जो आस्क प्राइस होगा उस टाइम पे आपका, उस पे आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट मी शो यू हाउ। हियर वी आर, हम यूरो यूएसडी पे जाते हैं, हम यूरो यूएसडी पे क्लिक करेंगे। जो चीज मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन के अंदर लिख के समझाई है वो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझाना चाहती हूँ। ईच वन ऑफ यू, आप सबके पास एक्सट्रीम फॉरेक्स का वॉलेट रजिस्टर्ड है, आप उस वॉलेट से डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और ये पूरी प्रैक्टिस डेमो अकाउंट के अंदर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मार्केट वॉच विंडो देख पा रहे हैं। दिस इज द मार्केट वॉच विंडो, जहां पे आपको बिड प्राइस और आस्क प्राइस दिख रहा है। ओके, जब आप ट्रेड प्लेस करेंगे बाय की, आपको यूरो यूएसडी पे 0.01 की वॉल्यूम से बाय की ट्रेड लेनी है, तो आपकी बाय की ट्रेड आस्क प्राइस पे प्लेस होगी। जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस की, दिस इज द प्राइस, 28 वाज द प्राइस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। दिस इज द प्राइस, ये आस्क प्राइस, और इस प्राइस पे आपकी ये जो ट्रेड है वो प्लेस होगी। सेम अगर हम दोबारा एक पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, हम सेल पे अगर प्लेस करेंगे तो वो आपका आस्क प्राइस पे नहीं जाएगा, दैट विल गो ऑन द बिड प्राइस। अगर आप सेल की ट्रेड प्लेस करते हैं, प्लीज हैव अ लुक हियर, 1.13171 के प्राइस पे, द करंट प्राइस जो अभी चल रहा है, आप सेल लगाएंगे, 1.13171 के प्राइस पे आपकी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। ओके, एंड जैसे ही आप ट्रेड ओपन करते हैं, यू नो कि आपका स्प्रेड जो है डिडक्ट होता है। स्प्रेड, दिस इज अ डेमो अकाउंट जो मैं अभी यूज कर रही हूँ। रियल अकाउंट पे आपका जो स्प्रेड रहेगा, दैट विल बी ओनली $10 to $11। सो जैसे ही बहुत सारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जो काफी क्लाइंट्स का रहता है कि जब भी वो ट्रेड करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि जब आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो एवरीबडी लुक्स हियर कि मार्केट में चार्ट पे जो प्राइस था उस प्राइस पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। आपकी ट्रेड कभी भी इस प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो हमेशा आपकी ट्रेड जो है आस्क प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगी, विच इज हेयर। और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपकी ट्रेड हमेशा बिड बिड प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट होगी, विच इज हेयर। मतलब अगर आप यूरो यूएसडी बाय कर रहे हैं, जैसे आपने यूरो यूएसडी बाय किया था, तो आस्क प्राइस के ऊपर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, और जब आपने यूरो यूएसडी सेल किया था तो बिड प्राइस के ऊपर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। दिस इज द बेसिक मार्केट ऑर्डर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस होता है। ओके, नेक्स्ट इज मार्केट ऑर्डर के बाद वी हैव द पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्डर हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप ऑर्डर। तो पहले हम लिमिट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, बाय लिमिट और सेल लिमिट। बाय लिमिट और सेल लिमिट कैसे लगती है हम वो लगा के भी देखेंगे, पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि बाय लिमिट और सेल लिमिट होता क्या है। सो a limit order is an order placed to either buy below the market or sell above the market at a certain price। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप किसी भी टाइम पे मार्केट में लोअर प्राइस से भी बाय कर सकते हैं
और अपर प्राइस से भी बाय कर सकते हैं, लोअर प्राइस से भी सेल कर सकते हैं और अपर प्राइस से भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये पेंडिंग ऑर्डर्स हेल्प करते हैं। तो जो लिमिट ऑर्डर्स हैं वो आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे, आप बाय लिमिट यू कैन ऑलवेज प्लेस बाय बिलो द मार्केट और सेल अबव द मार्केट लिमिट के केस में। ओके मतलब यू प्लेस अ बाय लिमिट ऑर्डर टू बाय एट और बिलो अ स्पेसिफाइड प्राइस। मतलब आपको बाय लिमिट लगानी है, और कैसे क्यों लगानी है आपको बाय लिमिट वो मैं आपको समझाती हूँ MT4 पे जाके वापस से। Here we are again on the MT4. हम अगेन यूरो यूएसडी का पेयर ही ओपन करेंगे एंड यहाँ मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन की जगह हम सबसे पहले पेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। ओके पेंडिंग ऑर्डर के अंदर वी आर ऑन टू बाय लिमिट, पहला ऑर्डर है बाय लिमिट का। जैसा कि हमने पढ़ा बाय लिमिट हमेशा मार्केट से नीचे के प्राइस पे लगेगी, राइट? तो अगर मैं ऊपर के प्राइस पे बाय लिमिट लगाने जाऊं तो पहले हम देखते हैं कि क्या होगा। जो मार्केट का करंट प्राइस है मैंने इससे ऊपर का प्राइस सिलेक्ट किया और मैंने बाय लिमिट लगाने की कोशिश करी, इनवैलिड। मेरे ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट ही नहीं होंगे MT4 की तरफ से। तो मेरे को बाय लिमिट लगाने के लिए हमेशा हमेशा करंट प्राइस से नीचे ही जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद ही मैं इस लिमिट को प्लेस कर सकती हूँ। ये आपकी बाय लिमिट प्लेस हो गई, लेकिन ये ट्रेड अभी मार्केट में गई नहीं है। ये ट्रेड मार्केट में कब जाएगी, जब ये प्राइस जो है एग्जीक्यूट होगा। मतलब मार्केट 1.13125 पे जाएगी। अभी मार्केट 1.13125 पे नहीं है। मैंने यहाँ पे बाय लिमिट क्यों लगाई, वाई आई हैव प्लेस्ड द बाय लिमिट हियर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी इस पॉइंट पे है, मार्केट इज एट 1.13185, राइट? और मार्केट जब इस पॉइंट तक आ जाएगी दैट मीन्स 1.13123 और 25 जहां पे मैंने अपनी बाय लिमिट प्लेस की है, मेरा ऑर्डर बाय का एग्जीक्यूट होना चाहिए। दैट मीन्स यहां से टच करने के बाद मार्केट ऊपर 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 ही जाएगी। सो दिस कैन वी कैन से कि दिस इज द सपोर्ट फॉर द यूरो यूएसडी, और अगर इस सपोर्ट को ये टच करता है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे बाय लिमिट प्लेस कर दी। हमारे पास अनदर ऑर्डर है सेल लिमिट प्लेस करने का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सेल लिमिट लगाऊंगी पेंडिंग ऑर्डर में, आई विल गो टू पेंडिंग ऑर्डर एंड हम सेल लिमिट लगाएंगे। बाय लिमिट हमने मार्केट के करंट प्राइस से नीचे लगाई थी, सेल लिमिट मार्केट के करंट प्राइस से ऊपर लगेगी। दैट मीन्स आई थिंक ये हमने प्लेस कर दी। आई थिंक अगर मार्केट इस पॉइंट पे जाती है 1.13224, इसके बाद से मार्केट नीचे ही गिरने वाली है। ओके सो वेयर वी वर ऑन द सेल लिमिट साइड। ओके अब सेम इसी केस में अगर मैं सेल लिमिट, जैसा कि मैंने बोला कि हम सेल लिमिट मार्केट से जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर के प्राइस पे लगाते हैं, तो अगर हम नीचे के प्राइस पे सेल लिमिट लगाने जाएंगे तो हमारा ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके क्लियर टिल हेयर? तो अगर मुझे बाय नीचे से नहीं बाय ऊपर से लेनी है तो मैं वो कैसे लूंगी? सिंपल, हम लोग आते हैं अपने स्टॉप एंट्री ऑर्डर्स पे। A stop entry order is an order placed to buy above the market or sell below the market. कैसे? यही सेम यूरो यूएसडी पे हमें पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करना है और ये पेंडिंग ऑर्डर पे हमें बाय स्टॉप लेना है। बाय लिमिट हमने कहाँ लगाई थी? करंट मार्केट प्राइस से नीचे। बाय लिमिट हमने लगाई थी करंट मार्केट प्राइस से नीचे। तो बाय स्टॉप हम कहाँ लगाएंगे? बाय स्टॉप इसका ऑपोजिट लगेगा। मतलब जो भी करंट मार्केट का प्राइस रहेगा उससे ऊपर बाय स्टॉप लगेगा और हम सॉरी you'll select the buy stop और करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के प्राइस पे आपका ऑर्डर प्लेस होगा लाइक दिस। ये आपका बाय स्टॉप यहाँ पे प्लेस हो गया। ओके आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइज। आप मुझे अगर चैट में रिप्लाई दे सकते हो तो। अब हमें जो नेक्स्ट ऑर्डर लगाना है, बाय लिमिट लग गया, सेल लिमिट लग गया, बाय स्टॉप लग गया, अब हमें सेल स्टॉप लगाना है। सेल लिमिट हमने करंट मार्केट प्राइस से नीचे लगाई थी या ऊपर लगाई थी? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज।
कि जब हमने सेल लिमिट लगाई थी, सेल लिमिट करंट प्राइस से नीचे लगी थी या करंट प्राइस से ऊपर लगी थी? इफ एनीबडी कुड आंसर मी दैट. नो प्रॉब्लम, गलत हो जाएगा. यस मिस्टर राजवर्धन पाटिल, करेक्ट. सेल लिमिट हमने करंट मार्केट प्राइस से ऊपर लगाई थी, तो अब हमें सेल स्टॉप लगाना है, तो वो कहाँ लगेगा? अबव और बिलो? एक सेल हमें पेंडिंग ऑर्डर ने दे दिया कि हम करंट मार्केट प्राइस से ऊपर लगाने का ऑप्शन है हमारे पास, उसके लिए हम सेल लिमिट यूज करते हैं. सो नाउ बिलो द मार्केट्स करंट प्राइस. वेरी वेरी नाइस मिस्टर पाटिल. अब हम सेल लिमिट प्लेस करेंगे, तो सेल लिमिट के लिए विल गो बिलो द मार्केट प्राइस एंड देन वी विल प्लेस. आई एम सॉरी, मैं अभी मार्केट प्राइस से नीचे नहीं आई हूँ. विल डू इट 0 and then we'll go down and we'll place the order. सेल, सॉरी, हम सेल लिमिट पे नहीं, हम सेल स्टॉप प्लेस करने जा रहे हैं. सेल लिमिट, इट वाज सेल लिमिट यहाँ सिलेक्टेड थी, दैट मींस सेल लिमिट तो मार्केट से ऊपर के प्राइस पे लगेगी. हमें सेल स्टॉप लगाना है, सेल स्टॉप मार्केट से नीचे के प्राइस पे लगेगा. तो विल सिलेक्ट द डाउन प्राइस and we will place the order. These are the 4 pending orders which we can place. Mr. Patil, can I please have your trading account number जो आपका हमारे साथ registered है? That will be very good. तो आप please personally मुझे chat में भेज दीजिए. Okay everyone. मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बोला था कि जिन क्लाइंट्स की, जिन कंटेस्टेंट्स की हमारे साथ इन सेशंस में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहेगी, we will definitely do and give them some extra leverages and extra privileges. That's why I'm asking you. So moving ahead here, जो हमने अभी पढ़ा है from the chart window कि I'm sorry, यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. दिस इज नॉट, द हेडिंग इज नॉट करेक्ट हियर. दिस इज नॉट व्हाट अ पिप इज. ये सिर्फ एक फिगर आपको सिग्निफाई करने के लिए है कि सेल लिमिट कहाँ लगनी है, सेल स्टॉप कहाँ लगना है, बाय स्टॉप कहाँ लगना है, बाय लिमिट कहाँ लगनी है. तो जब भी आपको मार्केट से ऊपर के प्राइस पे बाय करना है तो आप बाय स्टॉप यूज करेंगे. करंट मार्केट प्राइस से नीचे के प्राइस पे आपको बाय करना है तो आप बाय लिमिट यूज करेंगे. और अगर आपको ऊपर से सेल लेना है तो आप सेल लिमिट यूज करेंगे, और नीचे से सेल लेना है तो आप सेल स्टॉप यूज करेंगे. अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं MT4 की. जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट आर दोज बेसिक टर्मिनोलॉजीज? कि अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, फ्री मार्जिन क्या होता है, स्टॉप आउट लेवल क्या होता है. ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. Okay, so we'll start with the account balance here on the MT4. Here as you can see, यहाँ पे जो आपको बैलेंस दिख रहा है, this is my demo account. यहाँ पे जो आपको बैलेंस दिख रहा है $49,998. This is your account balance. Okay, दिस इज योर करंट अकाउंट बैलेंस. मतलब जितना अमाउंट आपने कंपनी में डिपॉजिट किया होगा, दैट इज योर अकाउंट बैलेंस. लेकिन आपका एक्चुअल बैलेंस क्या है? दैट इज योर इक्विटी. एक्चुअल बैलेंस मतलब जो भी अभी इस टाइम पे करंट ट्रेडिंग की इक्वेशन से आपका जो एक्चुअल बैलेंस चल रहा है, दैट मीन्स जितना प्रॉफिट और लॉस चल रहा है उसका पूरा एडअप आपको इक्विटी में शो करेगा. Whatever your floating value is, आपकी जो भी फ्लोटिंग वैल्यू रहेगी, आप उसको बैलेंस के अंदर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस फिगर. उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके अकाउंट की करंट इक्विटी जो है वो पता चलेगी. ओके, सो बैलेंस तो वो फिगर है जो आपने कंपनी में डिपॉजिट कर दिया फर्स्ट टाइम पे, और उस बैलेंस को यूज करके आप ट्रेड कर रहे हैं. अब जब आप उस बैलेंस को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं, देन आपका कुछ ट्रेड्स पॉजिटिव में भी जाएंगी, कुछ ट्रेड्स नेगेटिव में भी जाएंगी, और नीचे ये एक फ्लोटिंग वैल्यू चल रही होगी. बैलेंस प्लस माइनस दिस फ्लोटिंग वैल्यू इज इक्वल टू योर इक्विटी. आपकी इक्विटी बेसिकली आपके अकाउंट का करंट बैलेंस है. ओके, और इक्विटी पे ही आपका पूरा अकाउंट जो है वो डिपेंड करता है.
सो आपको हमेशा अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपना लॉट साइज और मनी मैनेजमेंट, हम लोग मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी एडवांस कोर्स के अंदर वी विल डू अ सेशन, बट आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आई विल गिव अबाउट इट कि आपको मनी मैनेजमेंट करके अगर आप अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करते हो एंड यू हैव अ गुड इक्विटी विच इज मोर देन $1,000 equity if you have in your account and you do the money management and you will not risk in your account, तो आप हमेशा अपने अकाउंट से प्रॉफिट ही निकाल सकते हैं. योर अकाउंट विल नेवर गोना लिक्विडेट अगर आप मनी मैनेजमेंट करके चलेंगे, अगर आप रिस्क मैनेज करके चलेंगे. व्हाट वी डू इज कि जब हम एक्चुअल में लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर रहे होते हैं, वी बिकम वेरी इम्पेशेंट. हाउ? जैसे मेरी ये ट्रेड चल रही है, अब आप लोगों के दिमाग में भी इस ट्रेड को देख के यही आ रहा होगा कि ये नीचे वाली ट्रेड ना पॉजिटिव में चल रही है, हम इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, हम 0.30 पे क्लोज कर देते हैं, हमें प्रॉफिट आ रहा है. लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये -1.35 की जो ट्रेड चल रही है हम इसे क्लोज कर देते हैं. हम वेट करेंगे कि ये पॉजिटिव में आएगी तो हम इसे क्लोज करेंगे. वो वेट करने के चक्कर में हमारी ये ट्रेड 1 से कब 13 और कब 130 पे पहुंच जाती है हमें नहीं पता चलता, बिकॉज हमारे पास वो लॉस बुक करने का करेज नहीं होता है. So that is what the main technique of money management, that you always have to manage your trades. अगर आप एक particular trade को $2 या $20 प्लस में क्लोज करने का करेज रखते हो, तो वहीं पे अगर आपने डिसाइड किया है कि -20 से ज्यादा मैं इस ट्रेड को मार्केट में नहीं रखूंगा, बिकॉज अगर मैं -20 से ज्यादा इस ट्रेड को होल्ड रखूंगा तो दिस कैन गिव मी अ ह्यूज लॉस, बिकॉज वो मेरे एनालिसिस के बाहर चला जाएगा और उस ट्रेड को हम मार्केट में नहीं होल्ड कर पाएंगे और मे बी हमारे अकाउंट की इक्विटी भी उस टाइम पे उतनी नहीं है. सो इट्स बेटर टू एग्जिट द मार्केट फ्रॉम दैट पॉइंट, और मार्केट आपको एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देगी, because there are a lot of opportunities on every point. Every second you get a new trade, every second you get a new opportunity to trade. There are more than 100 of pairs on the platform, so don't stuck on that particular trade जो trade आपको नुकसान में लेके जा सकती है. So always manage your risk. Okay, we went थोड़ा सा off the track. तो हम थे equity पे, और इसके बाद next जो point है that is मार्जिन. कोई भी ट्रेड ओपन करने के लिए आपका मार्जिन यूटिलाइजेशन होता है. ओके, मार्जिन यूटिलाइज जब भी आप कोई ट्रेड ओपन करते हो, आप जो भी आपको कोई ट्रेड ओपन करने के लिए जितना भी अमाउंट सेव रखना पड़ता है आपके बैलेंस के अंदर से, दैट इज योर मार्जिन. एंड मार्जिन के पीछे जो वैल्यू बच जाती है उसको आप बोलते हैं फ्री मार्जिन. हियर यू कैन सी, आप लोगों ने आई थिंक अभी देखा होगा कि सेल लिमिट, सेल स्टॉप यहाँ पे है, बाय स्टॉप यहाँ पे है, लेकिन बाय लिमिट यहाँ नहीं है, क्योंकि बाय लिमिट का जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो चुका है. मार्केट उस पॉइंट पे पहुंच गई थी और बाय का ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो चुका है यहाँ से. तो दिस इज द बेनिफिट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पे पहुंचेगी आपका ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, तो ये तीनों ट्रेड्स जैसे कि ओपन है आपकी, इन तीनों ट्रेड्स को ओपन करने के लिए $2.83 का मार्जिन यूटिलाइज हुआ है, और पीछे बैलेंस में से इस मार्जिन को सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो फ्री मार्जिन आपको जो मिलेगा, मतलब इतना मार्जिन आपके पास अभी है कि आप और ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका ये मार्जिन जो है बहुत ही कम हो जाएगा, उस टाइम पे आप न्यू ट्रेड्स नहीं ले पाओगे. मतलब जब आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी ट्रेड्स ही ओपन कर दी होंगी तो आपका मार्जिन खत्म हो जाएगा. तो देयर इज अ लिमिट जो कि आपके बैलेंस पर डिपेंड करती है कि आप एक टाइम पे कितने स्टैंडर्ड लॉट्स अपने अकाउंट में ओपन कर सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टॉप आउट लेवल. आपका स्टॉप आउट लेवल इस मार्जिन लेवल पे डिपेंड करता है. जितना आपका फ्री मार्जिन कम होता जाएगा, मतलब जितना ये फ्लोटिंग माइनस में जाता रहेगा, आपका मार्जिन लेवल कम होता जाएगा. एंड देयर विल बी पॉइंट जब आपका मार्जिन 30% पे पहुंच जाएगा, देन योर अकाउंट विल बी लिक्विडेटेड एंड यू विल बी स्टॉप आउट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. So that's all. These are all the topics I think which we have done today. Yeah, account balance, equity, margin, free margin, and stop out level. That's all for today. We have done all the basic concepts जो हमने starting से शुरू किए थे. We have done it all the concepts today.
एंड जो यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीक से वी विल स्टार्ट अगेन. सो एनी न्यू क्लाइंट्स हु वांट टू ज्वाइन एंड हु वांट टू कम, यू विल गेट द लिंक, और नेक्स्ट वीक से आप लोग दोबारा इसे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल हैव अवर एडवांस सेशन ऑल्सो, और वो एडवांस सेशन जितने भी रजिस्टर्ड क्लाइंट्स हैं वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीवन. इफ anybody has any question, so they can ask. Allow participants to unmute themselves. अगर अभी भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है, if they want us to repeat the previous sessions of the basic, please let me know कि कितने लोग interested हैं वापस से, जिन लोगों ने पहले के sessions attend नहीं किए थे, so that we could know and we could repeat them. Yeah, hi Manali, how are you? Manali, Shruti, everybody is here. I'm good. Good. Okay, great. Okay, Jay sir, so everything is good? Should we wrap up then if nobody has any question? So I think we should wrap up, and you guys will get the new link also, जो कि एडवांस सेशन का लिंक होगा, प्लस ये बेसिक की रेपिटेशन भी होगी. Excuse me. Yes. Yeah, Mitali. Ma'am, that's Mitali. Can we get the recording of today's? You will get video? it. You will get it. Okay, fine. Thank you. Okay. Yeah. So, okay, everyone, we are going to wrap up. Thank you so much. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Thank you everyone. Bye-bye. Take care. And if you have any questions related to this, तो आप अपने मेंटोर से एक बार पूछ सकते हैं. एंड इसमें जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा, एवरीथिंग यू कैन रीवॉच इन द रिकॉर्डिंग्स. एंड अगेन जब बेसिक सेशन होगा, जो भी डाउट क्लियरेंस आपकी रहेगी, तो यू कैन कम अगेन टू द बेसिक सेशन ऑल्सो. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. मैम वही पहला, हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, यस जो पहले 2 सेशन हुए थे ना, उसके भी हाँ. वीडियोस लगेंगे अपने को. या तीनों सेशंस की वीडियो आई विल सेंड. वो तीनों. यस, ठीक है. प्लीज. Okay, then everyone, goodbye, take care.